it's better to go for lesser trait if you want to have more genetic gain. Am I clear to all of you children? That was what I had started in the last class, basis and methods of selection, and then I had dealt with, it's just a quick revision, and then I had dealt with single trait selection. I taught to you all about what I taught. Do you remember? आप लोगों को फिर मैंने बताया कि single trait selection में individual selection is the best method of selection. Then we compared its advantages and disadvantages. उसके बाद हम लोग गए पेडिग्री सिलेक्शन में, उसके बाद हम लोगों ने देखा, एंड देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने इंडिविजुअल सिलेक्शन के बारे में जानी वो ये था कि इंडिविजुअल सिलेक्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ ऑल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इंडिविजुअल सिलेक्शन माइट नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज, एंड सेकेंड फॉर लोली हेरिटेबल ट्रेट प्रेफरेबली वी शुड नॉट गो फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन. तब मैंने आप लोगों को देन आई टॉट टू यू ऑल अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शंस, whereby before that repeated records, the importance of repeated records too were also shown to you all, and then I said to you all that it for repeatable trait more the repeated records, अगर हम उसी individual selection को ज्यादा record के लिए लेते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, बट प्रॉब्लम यह है कि उससे जेनेटिक जनरेशन इंटरवल बढ़ता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेम जेनेटिक गेन इंक्रीजेस, सो जेनेटिक गेन पर ईयर डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई इफ इट इज feasible and if it is accurate with one record it is better. Then after that pedigree selection was taught. हाँ बेटा बोलिए. Very good question. Very good question. What is the value of repeatability? Repeatability value is 0 to 1. यहाँ पे for any value lesser than 1. Very good question. अब सही है बेटा? अब बताइए. एक से कम है मतलब ये डेसिमल में होगा, है ना? वेरी गुड. देयर वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. देयर वाज टाइपिंग मिस्टेक. एंड सो व्हेन यू से दैट आर का वैल्यू अगर कोई पॉइंट में है वो कम है, मतलब हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर. इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि व्हाट इट सेज इज जस्टिफाइड और नॉट, कि ओवरऑल वैल्यू एक्सीड्स यूनिटी और नॉट एज सेड बाय इट, or and then because this repeated records, in repeated records denominator exceeds the repeated records, it this value exceeds unity, numerator exceeds denominator. So what we do, we go for repeated records, but I said to you all the constraint about the repeated records. Now the second method I taught to you all was pedigree selection, whereby I said to you all that out of all the pedigree selection is based on the fact that 50% of the gene come from each parent. 0.5H is the accuracy of selection based on 1H, one parent. 0.7H is the accuracy of selection based on both parent. And then I also gave to you all, जो कि मैं आप लोगों को forward कर दूंगी, table from the book of Gurvinder Singh Brasser. And there you all had also asked me about the name of the book. रुकिए देखकर आप लोगों को exact name बताती हूँ. The name of the book to be consulted for this semester is preferably the best book, in fact, for undergraduate students or even the postgraduate. Is so good. It is Animal Breeding Principles and Application by Gurvinder Singh Bra. Here I have mentioned it in last. इसके लिए ये कंप्लीट बुक है ये बुक, इसके अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट डिटेल, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू गिव इट इन डिटेल ओनली, जितना दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपको जितना दे रही हूँ, ठीक है? फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है पढ़ना तो बुक चाहिए ही. एज अ मेडिकल ग्रेजुएट और अलाइड साइंसेज ग्रेजुएट यू ऑल शुड हैव थरो नॉलेज, एंड दिस इज द बेस्ट एंड सोल बुक एंड कंप्लीट बुक टू बी कंसल्टेड. अब आगे अगर कोई और बुक लगेगा मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूंगी. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now moving on further, as the next was pedigree selection, as I told to you all. So in pedigree selection I was telling to you all that एक टेबल आप लोगों को शो किया जिसमें मैंने दिखाया कि जो मैक्सिमम एक्यूरेसी पेडिग्री सिलेक्शन से मिल सकती थी वो 0.7H था, तब जबकि हम दोनों पेरेंट, चारों ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सबको कंबाइन करके जितना भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं उससे मैक्सिमम जो हमारा एक्यूरेसी है वो 0.7H है, एंड इन इंडिविजुअल इट इज H. सो ऑब्वियसली इंडिविजुअल सिलेक्शन इज मोस्ट एक्यूरेट. While more the records available, more in case of pedigree selection also it will be more accurate. पहला. दूसरा, पेरेंट से जैसे ग्रैंड पेरेंट में गए, ग्रैंड पेरेंट से ग्रेट ग्रैंड पेरेंट गए, आइडियली एनफ वी शुड नॉट मूव फर्दर इन पेडिग्री सिलेक्शन, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के ऊपर का क्या होगा? पेरेंटल जनरेशन का जीन कितना है? हाफ टू द पावर 1 फ्रॉम ईच पेरेंट. ये देखिए ध्यान से, ग्रैंड पेरेंट के जनरेशन में हर एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ टू द पावर 2 माने 1/4.
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के जनरेशन में हर एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ टू द पावर 8, हाफ टू द पावर 3 यानी 1/8। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ टू द पावर 4 माने 1/16। तो जब जेनेटिक कंट्रीब्यूशन घट जाएगा, जब उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जीन में टू द इंडिविजुअल कंसर्न, उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। Then I showed to you all the advantage and constraints as well as of the pedigree selection. उसके बाद हम family selection पे आए थे, जिसमें हमने बताया था between family selection और within family selection दो type of family selection होते हैं। हाफ सिप और फुल सिप फैमिली आप लोगों को भी बताया, जब दोनों पेरेंट कॉमन होंगे तो वो फुल सिप फैमिली होता है। बिटवीन फैमिली सिलेक्शन और विद इन फैमिली सिलेक्शन में यही अंतर है, या फिर ये कहें कि बिटवीन फैमिली सिलेक्शन और बाकी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन में यही डिफरेंस है कि व्हेन वी सिलेक्ट फॉर अदर मेथड, बाय अदर मेथड वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग इंडिविजुअल, but when we select for between family selection, by between family selection we are selecting the whole family on and whole। किसी भी ट्रेट को जिसको सिलेक्ट करना है उसका मीन, उसका पॉपुलेशन मीन या उस फिनोटाइप का मीन, जैसे एक प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन का फैमिली के बेसिस पे हम मीन देखते हैं। 10 इंडिविजुअल 10 लैक्टेटिंग इन एन एनिमल, क्या है उसका मीन, 10 एनिमल्स 10 पोल्ट्री ऑल लेइंग, व्हाट इज द मीन। उस तरह करके हम मान लीजिए 10 है 15 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज यील्ड ऑफ दैट ट्रेड फॉर द फैमिलीज कंसर्न्ड देखते हैं और उन सारी फैमिलीज को रैंकिंग करते हैं। बेस्ट 1, 2 और 3 सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड द ब्रीडिंग एनिमल्स आर टेकन फ्रॉम दैट सिलेक्टेड फैमिलीज ओनली। In within family selection same proportion of individual are selected from each family। अगर हमको चार हमारे पास बेस्ट फैमिली है जो हमने देखा है कि so it is good and we have to select, or suppose we have 10 families on the farm, total 10 families on the farm, and we have need of a total of 10 breeding animals। In this case we cannot go for selecting family। if we take within family selection हर एक में से एक एक को सिलेक्ट करेंगे, 100 चाहिए तो हर एक में से 10 देंगे, 100 10 को सिलेक्ट करेंगे। Then we learned about SIP selection। SIP selection actually refers to full SIP या half SIP, both types, and it refers to the selection whereby you are selecting on the basis of average performance of its SIP। full SIP means both the parent are common, half SIP matlab only one parent is common। matlab when if you are selecting in, it will not be wrong to say if I say that if you are selecting it on the basis of its sisters and brothers, it is called as SIP selection। Then progeny selection। progeny selection is the next method of selection which I told to you all। according to me progeny selection, although इसमें बस एक ही खामी है कि जनरेशन इंटरवल इसका सबसे ज्यादा होता है, वरना प्रोजेनी सिलेक्शन इज द मोस्ट एप्लीकेबल। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स है उसके लिए हम लोग प्रोजेनी सिलेक्शन वाइडली यूज करते हैं, फील्ड में प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं। सो दीज मेथड्स मेक प्रोजेनी टेस्टिंग इज वेरी एप्लीकेबल, बट जस्ट दैट इन दिस केस जनरेशन इंटरवल इज लार्जर। आज हम लोग अब यहाँ से हम लोग प्रोजेनी सिलेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए अब थोड़ा सा वेटेज हम लोग दे रहे हैं, अभी तक जो इतना था पिछले क्लास का रिवीजन था। नाउ एज फार एज प्रोजेनी टेस्टिंग इज कंसर्न, सिलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोजेनी इज कॉल्ड एज प्रोजेनी टेस्टिंग। नाउ व्हाई डू वी, कैन यू टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग, बताइए। ये साइंस को छोड़िए, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि इट इज सैम्पलिंग नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, जीन सेग्रीगेशन, रैंडम यूनियन। कैन यू टेल मी हाउ डू वी टेक प्रोजेनी टेस्टिंग एज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर ब्रीडिंग, बोलिए कोई। excellent excellent, I couldn't have asked for better answer, that was what was going on in my mind। this is what will give you the best estimate of breeding value, because this is what it is transmitting to its progeny। तो हमको प्रोजेनी से ही तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट ब्रीडिंग वैल्यू इसकी क्या है, क्या ये ट्रांसमिट करता है टू प्रोजेनी, क्योंकि हमें उसी के लिए तो सिलेक्ट करना है। वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द एनिमल फॉर ब्रीडिंग एंड वी जस्ट वांट टू सी कि हाउ गुड द प्रोजेनी और हाउ बैड द प्रोजेनी ऑफ दैट एनिमल विल बी। सो नो बेटर गाइड देन द प्रोजेनी टेस्टिंग। नाउ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग इज गिवन बाय 0.5h under root n upon 1 plus n minus 1 t, whereby h is equal to square root of heritability। नो डाउट यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है कि 0.5h है भाई, तो 0.5h तो सब में दिखा है, 0.5h सारे पेडिग्री सिलेक्शन में दिखे हैं। h अभी है ओनली h हमें दिखा है एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन में। अब ये एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेनी सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, इसके साथ ये कंपोनेंट बढ़ा है स्क्वायर रूट वाला n upon 1 plus n minus 1 t। देखते हैं इसका क्या मतलब है। n इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोजेनी पर सायर। सो RAP फॉर प्रोजेनी टेस्टिंग, ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। So RAP for progeny testing is directly proportional to N।
मतलब आरएपी एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेनी सिलेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, 3-4 क्लास से आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मींस मोर द नंबर ऑफ प्रोजेनी जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हैं, मोर एक्यूरेट आवर प्रोजेनी सिलेक्शन वुड बी। बट नेचुरल लॉजिकली एक ही प्रोजेनी किसी का टेस्ट करते हैं, एंड इफ इट इज वेरी गुड एंड वी सिलेक्ट द एनिमल, इट माइट बी अ बिग ब्लंडर। बट नेचुरल इफ जस्ट वन प्रोजेनी एंड वी आर सिलेक्टिंग द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन, एक ही का रिकॉर्ड मिला, एक ही सिलेक्ट कर लो। And if suppose it is worthless and we are culling it, we might again be doing a blunder. So as it approaches one, ye even for 100, as n becomes large greater than, ये इसमें कुछ approaches one even as the n becomes large, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा 100 के पास आएगा, this n will become, so it becomes the value of this n, as n increases this progeny testing is directly proportional to n because this factor, इसको पुट करके देख लेते हैं, 100/1 जोड़ 100/1 गुणे phenotypic correlation among progeny of a sire and equals to RH square. Since progeny of a sire constitute a half zip group, T क्या है? Phenotypic correlation progeny of a sire, ये and equals RH square. Since progeny of a sire constitute half zip के केस में क्या होगा? R is equal to 0.25, full zip के केस में R is equal to 0.5, इसीलिए T की वैल्यू क्या होगी half zip में? 0.25 H square, and for full zip it will be equal to 0.5 H square. In nutshell, just remember that RAP or accuracy of progeny selection based on the values of progeny is directly proportional to n, where n is the number of progeny and it approaches even 1. It means that more the accuracy, more the progeny, more will be accurate the selection will be. Why are dams not progeny tested? इसीलिए बोला कि इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ मनु क्लास लेना, हाँ बात करते हैं। Why are dams not progeny tested? This is very important. Dams are not progeny tested because, बताइए, बता सकते हैं, on the basis of, ये इस पे based है, RAP for progeny testing is directly proportional to n. Tell me. There is a limit to, हाँ बोलिए. Very good. Very good. Because the number of offspring per dam is very less, the accuracy of selection will be very less. So we do not go for progeny testing in case of dam. And why are sires why is progeny testing used in case of sire? हटा दिए स्लाइड, इसमें लॉजिकल आंसर होगा, बताइए सायर के केस में क्यों यूज करते हैं? मैंने एक वर्ड यूज किया, सायर के केस में सेक्स लिमिटेड ट्रेट में प्रोजेनी टेस्टिंग का ज्यादा यूज होता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनफैक्ट। अब बताइए, आई एम एक्सप्लेनिंग एंड आई विल बी अगेन यूजिंग इट इन आस्किंग टू यू। हाँ हाँ बेटा, why will it not be possible? Almost, very good. The principle is that because both sire and dam contribute equally to the performance of a progeny, we need to select for all the trait for both sire and dam first. Second, but we cannot do it for sex limited trait because although the gene is possessed by both sire and dam, gene is transmitted equally by both sire and dam for milk production, it might not be shown, expressed in male or sire. So we do not have a value to select it on the basis of individual on individual selection. So we have to go for other methods of selection. Progeny testing for milk production or for other or egg production sex limited trait is a widely used method for selection of sires or the male animals. And this is called as sire indexing, whereby we rank or give index to the performance of the sire based on the performance of its female progeny. Am I clear to all of you? Sire index, उसको बोल क्या बेटा?
फिर से हाँ, प्रोजेनी टेस्टिंग, यहाँ पता चल गया कि प्रोजेनी टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी, तो उसको हम लोग प्रोजेनी टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा गाइड होगा ब्रीडिंग वैल्यू का, इसीलिए हम लोग इसको प्रिफर करते हैं। क्योंकि इन केस ऑफ डैम प्रोजेनी लेस है, हम लोग उसको नहीं सिलेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सायर, क्योंकि जीन आर प्रेजेंट इन बोथ सायर एंड डैम फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फॉर एग प्रोडक्शन, फॉर अदर सेक्स लिमिटेड ट्रेड, and they both are important economic traits, and there are other economic traits which are sex limited and but just expressed in one trait. सिलेक्शन तो हमको करना है उसके लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट ट्रेट है। पोल्ट्री में एग प्रोडक्शन, देन केस ऑफ डेयरी एनिमल्स मिल्क प्रोडक्शन, गोट मिल्क प्रोडक्शन, तो अब करेंगे क्या, हाउ विल वी गो फॉर इट, because it is sex limited and we have to select. So what is the best method, progeny selection. We go for progeny selection, why not pedigree selection, because as I said to you all, except for the increased generation interval, progeny selection is much superior to pedigree selection given number of progeny are higher, पहला। दूसरा, on the basis of it, a method or scientific, on the basis of mathematical principles, there are various methods, simple daughter average index, corrected daughter average index, which I will be taking in the upcoming classes, which helps to decide the genetic merit or breeding value or select the sire on the basis of the performance of its female progeny, example for milk production or for egg production. And this method of selection of sire on the basis of its female progeny, comma, a type of progeny testing is called as sire indexing, and there are various methods of it which we will be dealing in the next class. अब समझ में आया बेटा? रौनक कहाँ पे समझ, कौन बोला जीन नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है, उस जेनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो प्रोजेनी को जब फीमेल प्रोजेनी को देगा उसमें तो एक्सप्रेस होगा, तो आधा जीन ही बेकार रहेगा। तो not exactly hidden, you all know now the difference between sex linked, limited and influenced. I think I had taken up in the last unit. बात समझे, इसमें होता है कि it is the gene for it are present but they are not expressed due to absence of the particular hormones. Is it clear to all of you? सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड था कि इट वाज प्रेजेंट ऑन द फीमेल क्रोमोसोम ओनली या फीमेल क्रोमोसोम, फिर उसमें बताया था कि एक्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वाई में कम होते हैं, वाई आर कंपैरेटिवली एम्प्टी, एंड द ट्रेट प्रेजेंट ऑन एक्स और वाई ओनली विल बी एक्सप्रेस्ड बाय अ ट्रांसमिशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेंडेलियन, रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अभी जो बोल रही हूँ वो है सेक्स लिमिटेड, बिकॉज इट इज लिमिटेड टू वन सेक्स। लिमिटेड टू वन सेक्स डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट हैव जीन। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मेन का अलग जीन बन के आता है और फीमेल का अलग जीनोम है, दे बोथ हैव सेम जीनोम। द ओनली डिफरेंस इज इन द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, 2x in case of female and 1x and 1y in case of male. Other than that, on autosomes all the traits will have similar gene. So अब जब similar gene है तो क्या बात होती है, due to presence of few important hormones in female it is expressed, while absence in male it is not expressed. But when it will be transmitting 0.5 or half of its gene out of total gene to the progeny, half from male and half from female, it will definitely be expressed in the next generation in case of female and again hidden in case of male. अब जब फीमेल में नेक्स्ट जनरेशन में हिडन होगा, एक्सप्रेस होगा, तो जो 0.5 के लिए अगर हम इफ सपोज वी आर नॉट सिलेक्टिंग फॉर द सायर एंड वी आर जस्ट सिलेक्टिंग फॉर द डैम, and howsoever good the dam is, the probability of having good calves or good female calves with good lactation yield will depend very much on how the sire was, what type of producer the sire was. Did you understand what I mean to say? That's why we need to select for both. Never get confused with the basic principle of sex influenced, sex linked and sex limited. The third type, दोनों बताया तो तीसरा भी याद दिला ही देती हूँ. In case of sex influence, the transmission or the dominance differs. जैसे baldness होता है, baldness में क्या होता है, in case of female heterozygous condition में जो होता है, it is non-bald, while in female it is bald. So dominance of the particular trait or the gene differs in heterozygous condition in male and female, and then polled and horned in case of sheep. And these are the example of sex influence. Now am I clear to all of you about these three type of trait? और जो एक और बोला था सेक्स लिमिटेड में एग और मिल्क प्रोडक्शन, और एक और जो बोला था सेक्स लिंक्ड
उसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया. दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्स लिंक्ड ट्रेट. ड्रोसोफिला में बहुत सारा है, बार बॉडीज एंड देन रेड एंड व्हाइट आई कलर एंड सो ऑन. So is it clear to all of you? Now, why are dams not progeny tested done? So what are the 3 important points to be kept in mind to devise a good progeny testing program? NDDP के वेबसाइट पे जाके देखिएगा and then you will find their progeny testing program. So this progeny testing program is going all over India because it is widely applicable in field conditions as well for promoting or for improving a breed as well as in academics as well in farms. To devise good progeny testing program, comparable genetic merit of dams and mates should be there. Uniformity मतलब क्या हुआ, बात समझे? कंपैरेबल जो मतलब हम सायर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके प्रोजेनी के बेसिस पे. तो ध्यान से सुनिए, एक का अगर डैम बहुत अच्छा है, एक का अगर वो डैम बहुत वर्स्ट है, तो हमने तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया उसके प्रोजेनी के बेसिस पे. तो वो तो डैम भी तो अच्छा वर्स इन्फ्लुएंस हुआ. पता चला कि डैम अगर किसी में अच्छा है तो उसके उस चक्कर में हम लोगों ने अच्छे प्रोजेनी सोच करके खराब सायर को अच्छा समझ लिया. और अगर डैम अच्छा रहा तो, और फिर भी अगर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी खराब है, डैम अगर अच्छा है प्रोजेनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और सायर बुरा है, हमने सायर को सिलेक्ट कर लिया प्रोजेनी के परफॉर्मेंस पे, एंड मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द डैम. Similarly, if suppose the dam is extremely worst and so the performance of progeny turns out to be not so good or worst, we happen to cull even the good sires on the basis of progeny. This is meant by comparative genetic merit of dams and mate. But in case of simple daughter average index method of sire indexing, it is not taken care of. But in other method like corrected daughter dam index, contemporary daughter dam index, we have taken care of this negative point or this disadvantage of not कंसीडरिंग कि हाँ एक में डैम भी तो डिफरेंस है, उसको कैसे कंसिडर करेंगे. तो डेफिनेटली व्हेन वी डिवाइस अ गुड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, या तो कंपैरेबल डैम्स रहते हैं या फिर हम लोग उस एरर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रॉपर मेथड. नाउ सेकंड इज यूनिफॉर्मिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन. इट इज बट obviously a very important constraints in any selection or in any research. Whenever we try to find the effect of one factor, बाकी तो constant रहेगा. तब तो सायर का इफेक्ट देख रहे हैं प्रोजेनी पे, या डैम का इफेक्ट देख रहे हैं सायर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो डैम और एनवायरनमेंट को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा. मतलब डैम सब में इक्वल रहे, एनवायरनमेंट इक्वल रहे, तब तो हम लोग सायर को कंपेयर करेंगे. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्मिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन. इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एज आई सेड टू यू ऑल, मोर द नंबर ऑफ प्रोजेनी मोर विल बी द एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन. Now, merits of progeny selection: high accuracy for lowly heritable trait, selection of sires for sex limited traits, and detection of carriers of deleterious gene. Yes. अब ये बताइए, ये तीसरा वाला कैसे होगा, carriers of deleterious gene? बताइए, tell me. हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. Many of the deleterious gene or lethal gene are such that वो सायर हो सकता है उसका कैरियर रहे, उसमें वो एक्सप्रेस ना हो. ध्यान से सुनिए, ठीक है. बट इट इज ऑब्वियसली हैविंग दैट जीन, एंड अगर वो रिसेसिव है तो जब तक उसके पास डबल डोमिनेट नहीं होगा, फिर भी चूंकि सायर में तो एक ही एक्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर सेक्स लिंक्ड नहीं है वो, तो इन जनरल ऑटोसोमल ट्रांसमिशन है, एंड इफ इट इज रिसेसिव इन नेचर इट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड, और सपोज एनी हाउ इट इज नॉट शोन, so and it is carrier, or it will get manifested in the progeny. तो अगर वो पेरेंटल जनरेशन में नहीं दिखा है सायर या डैम में, और वो प्रोजेनी में दिखता है, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ कंक्लूजन कि भाई जीन कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट था, या तो सायर में या तो डैम में. एंड इफ द जीन इज वेरी हार्मफुल और डिलीटीरियस और लीथल, थ्रू दिस प्रोजेनी टेस्टिंग वी कैन स्टॉप यूजिंग दैट सायर एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, or dam at that very point of time. Am I clear to all of you? Drawback: prolonged generation interval, low selection intensity and high operational cost. ठीक है, लो सिलेक्शन इंटेंसिटी क्यों होगा बताइए. जनरेशन इंटरवल आई हैव टोल्ड यू many a times कि क्यों जनरेशन इंटरवल बढ़ता है. वी विल हैव टू वेट फॉर द trait to be expressed in that progeny until all the progenies are produced, and for the progeny's performance. अब progeny का lactation देखेंगे, मतलब progeny जब parent बन रहा है next generation का, तब हम लोगों को parent select करना है. This is how the generation interval is increased. Now, low selection intensity, because more the number of progenies to be considered for selection, definitely selection intensity will be less, because you know proportion P, it is
Inversely proportional to proportion pi, selection intensity. Am I clear to all of you? Then third one, high operational cost. Maintaining more number of progenies on the farm until you have been able to see the trait expressed in the progeny for selecting the parent of that progeny definitely involves more operational cost. मतलब हम लोग तब तक रुक रहे हैं जब तक कि वो ट्रेट मैनिफेस्ट हो उस प्रोजेनी में, उतना तक लगभग 2 पीढ़ी तक कि भाई ये तो पहले प्रोजेनी प्रोड्यूस किया, अब प्रोजेनी को प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देना होगा ताकि देख लेना होगा कि प्रोजेनी का लैक्टेशन यील्ड कितना अच्छा, प्रोजेनी का लैक्टेशन यील्ड अच्छा है, इसका मतलब अब हम लोग सायर को सिलेक्ट करेंगे, और अगर डैम को सिलेक्ट करेंगे, और अगर प्रोजेनी का लैक्टेशन खराब है तो उसके पेरेंट को कल करेंगे. सो दिस इज हाउ operational cost is also increased as the generation interval increases, operation cost also increases. Pehla. And I said to you all the thumb rule for good accuracy of progeny testing to have more number of progeny. अब जितना progeny को sustain करेंगे उसको रखेंगे, we have to go for more operational cost. Now combined selection. This is very 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 important selection because sometimes all are important. Sometimes sometimes one type of selection might not be able to give you all the exact information. So the second type aided मतलब more than one type of selection, जब हम लोग combine करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं combined selection. When several source of information, that is performance record of several type of relative area are combined together into linear combination to arrive at, just a minute, just wanted to make the correction slide. Combined together into linear combination. Linear combination मतलब in the form of linear equation to arrive at a single value called as combined selection or index value. ये index value ये term याद रखिएगा, अभी सायर इंडेक्स में आएगा, सिलेक्शन इंडेक्स में आएगा. तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है जहां हम लोग एक इंडेक्स यानी सम टोटल निकालते हैं एक लीनियर इक्वेशन से, पहले का कितना आया, दूसरे का कितना आया, कुछ वेटेज पहले का रहता है, कुछ वेटेज दूसरे का रहता है, ऐड करते जाते हैं, इसीलिए इसको लीनियर बोला. तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू. दिस वैल्यू इज देन यूज्ड एज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन. Selection based on combination of performance records of an individual and its relatives is referred to as combined selection. मतलब जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल के बेसिस पे और उसके रिलेटिव के रिकॉर्ड के बेसिस पे, उसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड सिलेक्शन. सो एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग वैल्यू, मान लीजिए ओन परफॉर्मेंस है और फैमिली एवरेज, दोनों को कंबाइन करके हम लोग को सिलेक्शन निकालना है. हियर वी हैव टेकन टू मेथड्स ऑफ सिलेक्शन. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सिलेक्शन, ओन परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है. सेकेंड वन फैमिली एवरेज, फैमिली सिलेक्शन लिया हमने, और हमने क्या किया, हमने वेटेज दिया, इंडिविजुअल सिलेक्शन को B1, फैमिली सिलेक्शन को B2. This weightage coefficient, these two are found out by the basis of, जैसे इंडिविजुअल का मान लीजिए एक्यूरेसी इतना है, उस बेसिस पे हम लोग उसको कुछ दे देंगे वेटेज. फैमिली एवरेज का एक्यूरेसी इतना है तो उस वेटेज पे हम लोगों ने कुछ दे दिया वेटेज, एंड देन वी कंबाइन द टू. तो जो ब्रीडिंग वैल्यू हमको मिलेगा, एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग वैल्यू बाय कंबाइनिंग द टू. व्हाट आर वी डूइंग बाय मींस ऑफ सिलेक्शन, हम ब्रीडिंग वैल्यू ही तो एस्टिमेट कर रहे हैं. कैसा ब्रीडिंग वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग वैल्यू. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द ऑब्जर्व ब्रीडिंग वैल्यू. whatever we are, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर आस्क्ड इन वन सिंगल वर्ड, ये एक हो सकता है एक सिंगल वर्ड में आप लोगों को पूछा जाए कि fill in the blanks. Selection is helping us to estimate the dash of an individual. What will be the answer? Expected breeding value. Very good. And ऑब्जर्व ब्रीडिंग वैल्यू भी, ब्रीडिंग वैल्यू उसका इंडिविजुअल का है. ऑब्जर्व वो है, अब क्या होगा, अब सिलेक्ट कर लिए हम लोग, मान लीजिए सब के बाद ये सारा पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ वन या कंबाइंड जो हमको सही लगा. सिलेक्ट करने के बाद व्हेन आई एम लेटिंग इट टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी, व्हाट आई गेट एज ब्रीडिंग वैल्यू विल बी द ऑब्जर्व्ड. And so this is expected, and that is, so that's why we call it as expected, जो हम expect करते हैं on the basis of selection, इसलिए यहाँ पे ये term है. तो ये एक index equation devise किया गया expected breeding value का, और combined selection के through इसको combined selection index value बोला गया. And here you can have many different plus B3, मान लीजिए 2 के बदले 3 कंबाइन किया तो प्लस B3 इंटू थर्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन. मान लिया हमने इंडिविजुअल नहीं अप्लाई किया, फैमिली प्लस पेडिग्री, तो B1 इंटू फैमिली सिलेक्शन प्लस B2 इंटू फैमिली पेडिग्री सिलेक्शन, एंड सो ऑन. तो ये इट विल डिपेंड अपॉन अस, ऑल द फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिपेंडेंट.
combined selection has found, that's why I told you important, very very important, because it has found wide application in genetic improvement of chicken as heritability for egg production is low. चलिए आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल गया. Large sized families of contemporarily reared full and half sib with reliable records are available in chicken. We have information of large size families because we have lot of progeny produced in the farm of two parent or one parent, and so we can combine individual, और वो भी बहुत कम time में produce because the generation interval is less, and because heritability is less we cannot go for just individual record. So what we do, we combine either individual selection with other method or the any two individual selection. So you see here the combined, this is an important question ki what is the formula for combined index value of hen. This combined index value of hen is what it is the index selection based on combined selection for hen, whereby you have combined individual performance, full sisters performance and half sisters performance. B1 weightage is given to hen's performance, B2 is given to full sisters performance, and B3 is given to half sisters performance. Similarly, for cock being selected on full and half sisters average, full sisters average plus half sisters average into B1 plus B2. भाई पहला नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, मिस्टेक हो गया क्या बेटा, इंडिविजुअल वाला कोई बताएगा क्या हुआ है? This is a question thrown to the student to have a brainstorming. बताइए. वही तो दिक्कत हो गया है बेटा, वही बताइए, बोलिए क्या दिक्कत हुआ है, बोलिए क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ बेटा वही तो कह रहे हैं कि वो दिक्कत हो गया है क्या. हाँ अब पूछ रहे हैं हमको क्या, आई डोंट नो. आप लोग के साथ पढ़ते हैं सीखते हैं, समय मिलता है गरीब आदमी को. बताइए. Who told the answer? Who told? अरे वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू. दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू हियर. दिस इज एक्चुअली नॉट अ मिस्टेक. एक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसकी हेरिटेबिलिटी लो है, कंबाइंड सिलेक्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं. वी हैव डिवाइज्ड अ कंबाइंड इंडेक्स. हेंस परफॉर्मेंस कहां से लिखेंगे इसमें? कैन अ कॉक ले एग? No. So this is the combined index value for hen. And yes, second related question, because in this case sire and dam both produce large number of progeny, we have actually gone for the pedigree selection always. Pedigree selection के लिए भी जा सकते हैं, but combined index value for hen for genetic improvement of egg production is very important, whereby we are combining the performance of hen as well as full sisters or half sisters for hen. But in case of cock we are using full sisters average and half sisters average. So these are, उसमें हमने इंडेक्स को B1 अटैच किया, इसको B2. Full sisters average and half sisters average, now you know they both are SIB selection, and so for devising the combined index value of hen we have used individual selection, SIB selection on full sisters, and the full SIB selection and half SIB selection. Similarly for cock we are devised the combined index using full SIB selection and half SIB selection. So if you are asked, you can get a question. आज एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा तो अब कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज कंबाइंड सिलेक्शन? अगर ये आधा या एक नंबर का क्वेश्चन होगा बस डेफिनेशन लिखाएगा. सपोज करिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो दूसरा लाइन उसमें पूरी स्लाइड छाप देंगे. इट इज मोर ऑफ एन इंपॉर्टेंस इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री बिकॉज एग प्रोडक्शन हेरिटेबिलिटी इज लो, एंड सो द कंबाइंड सिलेक्शन डिवाइस फॉर कॉक इज फलाना B1 into hens performance plus B2 into full sisters plus half sib sisters B3, एंड ऑन कॉक हेंस परफॉर्मेंस हटा देंगे और उसमें क्या करेंगे, फुल सिब और हाफ सिब वाला वैल्यू डाल के B1 B2 कर देंगे. क्यों? क्योंकि कॉक में एक प्रोडक्शन एग्जिबिट ही नहीं होगा तो हेंस परफॉर्मेंस कहां से आए, कॉक्स परफॉर्मेंस कहां से, उसमें वो वैल्यू कहां से आएगी. सो डिवाइस, और हो सकता है अलग से आए इक्वेशन फॉर कंबाइंड सिलेक्शन index in hen and cock. So this is done.
यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, या फिर स्ट्रेट अवे वाइवा में पूछेंगे ये बताओ भाई, why is combined selection applicable in hen, because heritability of the trait is low and we have ample data of the contemporary families of half sibs and full sibs available in case of poultry. Where were we? कंटेम्प्रेरी, वेरी गुड. कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं. व्हेन वी गो फॉर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द प्रोजेनी, जैसे इनफैक्ट एक फॉर्मूला होता है कंटेम्प्रेरी डॉक्टर, कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय पे, समसामयिक जो हिंदी में बोलते हैं. इफ सपोज द सुनिए ध्यान से सुनिए, कुछ प्रोजेनी का डेटा हम लोगों ने 1 साल पहले का लिया, उसी साल का कुछ प्रोजेनी का डेटा हमने 2 साल बाद का लिया. नाउ द डिफरेंस विल बी दैट this 2 years might have led to permanent and temporary environment difference between the two, might have led to the difference in the producing ability of the dam. So to make the constant, make other factors constant so as to be able to select whatever we are selecting, we take contemporary उसी समय में जो प्रोड्यूस में, ताकि environmental effect जो रहे वो constant रहे. Am I clear to all of you now? बेटा एट द मोमेंट नहीं, कंटेम्प्रोरी मतलब जिस समय का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग पास्ट का अगर किसी एक का ले रहे हैं, एक पीरियड डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जो 1 वीक में प्रोड्यूस हुआ है या 1 मंथ के अंदर जो लेइंग में आई है, तो उस 1 मंथ के अंदर हमारे पास जितने डेटा होंगे हम उसको लेंगे, तो उसको हम कंटेम्प्रेरी बोलेंगे. कंटेम्प्रेरी डजंट मीन इन द मोमेंट, ऑन द डे, समसामयिक, उसी समय में. अब हम ये डिपेंड करता है कि हम उस समय के पीरियड को कितना डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी. जब हमको लगता है कि भाई सीजन चेंज को भी एलिमिनेट नहीं करना है, इट कैन हैव इफेक्ट, तो हम मैक्सिमम 1 सप्ताह या 1 महीना तक में लेंगे. व्हेन वी नो दैट इट इज लार्ज एनिमल, वी कैन नॉट हैव मच डेटा. जब हम लोग एकदम पीरियड को रिड्यूस करके 1 वीक 1 दिन कर देंगे, हमारे पास डेटा ही ज्यादा नहीं होगा. उस केस में क्या करेंगे, हम लोग पीरियड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3 मंथ करके पीरियड, 4 मंथ करके. भाई चलो ठीक है, माइक्रो एनवायरमेंट सीजन का उतना इफेक्ट नहीं होता है, मतलब माइक्रो एनवायरमेंट का उतना इफेक्ट नहीं होगा इसमें, बाकी जिस चीज का इफेक्ट होगा, इसलिए हम लोगों ने उतना समय बढ़ा दिया कि हाँ उससे ज्यादा 3 महीने के अंदर में या 4 महीने के अंदर. सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस पीरियड को कितना मान के चलते हैं. ओवरऑल इट जस्ट मीन्स इन द सेम इंटरवल, टाइम इंटरवल, तो उसको जितना मिनिमम रखेंगे उतना एक्यूरेट होगा. तो बस हम लोगों को वो भी तो देखना है कि उस बीच में हमारे पास डेटा भी उतना अवेलेबल हो रहा है कि नहीं. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. So this was combined index value of selection. Merits of combined selection: high accuracy. जनरेशन इंटरवल इज नॉट प्रोलॉन्ज्ड, बढ़ता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसी समय जो डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ उसको हम लोगों ने लिया और उसके साथ एक दो को कंबाइन करके लिया, बशर्ते कि हम ज्यादा दिन वेट करें. नो एडिशनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. Then there is indirect selection. You have already have a knowledge about this indirect selection. As far as I remember, I have taught to you all. कब पढ़ा है बताइए, खुद ही बताइए. Children, tell me. किसी को याद नहीं है ये इनडायरेक्ट कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन वर्ड याद आ रहा है, कब आया था? So you read it in the chapter of response to selection, जब पढ़ा रहे थे सिलेक्शन इंडेक्स, इंटेंसिटी, सिलेक्शन डेफिनेशन, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ये बता रहे थे, जेनेटिक गेन, जनरेशन इंटरवल. एंड देन आई टॉट टू यू ऑल आफ्टर डायरेक्ट सिलेक्शन, और जेनेटिक गेन बता दिया, उसके बाद इनडायरेक्ट सिलेक्शन बताया. तो जो कोरिलेटेड रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन, जिसको हमने CRY से डिनोट किया, आई डोंट नो, CRY से डिनोट किया था, CRY इज इक्वल टू I HXHY RA sigma PY, where R was the genetic correlation between the two trait HS and HY, where the square root of heritability of trait X and Y. RA
आई इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेट एक्स, उस समय हमने बताया था कि बहुत सारे ट्रेट ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे उसको डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट माइट बी स्लॉटर्ड ट्रेट, इट माइट बी मैनिफेस्टेड वेरी लेट इन लाइफ, इट माइट नॉट बी फीजिबल टू मेजर एट ऑल, इट माइट नॉट बी इकोनॉमिकली फीजिबल. तो ये चारों रीजन अगर होंगे देन वी गो फॉर सम अदर ट्रेट जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रेट माने थे. अब आप लोग को याद आएगा उस दिन आपने पूछा भी था शायद रौनक या अंशुल, किसी ने, आप ही ने, रौनक नहीं पूछा था कि मैम ये एक्स वाला जो फिर से बता दीजिए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन, फिर उसमें कुछ एक वर्ड जो था मिस्टेक था, किसी बच्चे ने सुधारा था. तो दिस इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन के जो बाद आता, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स के बाद बताया था कि इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन व्हेन वी हैव टू टेक प्राइमरी ट्रेट फॉर सिलेक्शन विच इज फीजिबल और विच इज मेजरेबल. या मतलब जरूरी नहीं है चारों कारण हो, कोई एक भी कारण होगा. तो अगर कोई एक ऐसा ट्रेट एक्स है हमारे पास जो आसानी से या तो मेजर हो सकता है या फिर जो कंस्ट्रेंट वाई के साथ है वो एक्स में नहीं है, तो हम एक्स को ले लिया डायरेक्ट प्राइमरी ट्रेट. सेकेंडरी ट्रेट हमारा वाई है जिसमें हम लोगों को रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, तो उसको हमने बोला CRY, कोरिलेटेड रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन इन वाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्स. Such method of selection, because they do not involve direct selection of the trait concerned, the target trait concerned, they are called as indirect selection. And the response to selection thus obtained is called as correlated response to selection in Y on the basis of X. तो उसी में हमने बताया था कि correlated response to selection on in Y on the basis of X. अब एक क्वेश्चन आज एक लिख लीजिए. तो ये जो CRY था हमारा वो कोरिलेटेड रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन इन सेकेंडरी ट्रेट Y था ऑन द बेसिस ऑफ X. चूंकि सिलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ, हमने बोला इनडायरेक्ट सिलेक्शन. उसमें हम लोग डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन बोलते थे, खाली रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन बोलते थे, या फिर जेनेटिक गेन बोलते थे. जब इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते तो हम उसको कोरिलेटेड रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन बोलते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ जेनेटिक गेन पर generation in character Y. In that case what we will do, या फिर कहा जा रहा है कि find the ratio, या क्वेश्चन हो सकता है find the ratio of genetic gain in direct and indirect selection. दोनों का आंसर सेम होगा. आंसर क्या करना होगा आपको, यू नो डायरेक्ट में क्या है फॉर्मूला, IHX RA सिग्मा PY. और अगर ये ट्रेट Y के लिए है तो ये हो जाएगा हमारा IHY RA सिग्मा PY. सिंबल कहाँ पे है, होम, इंसर्ट सिंबल, सिग्मा, क्लोज. ये एक टर्म है सिग्मा PY, ये अनदर टर्म है. इट शुड बी इन सबस्क्रिप्ट. अब उसको हमको अभी टाइम लगेगा लगाने में, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट. HY is square root of heritability in character Y. I is the intensity of selection in character Y. RA is the additive genetic variance in character Y, and sigma PY is the phenotypic standard deviation in character Y. Now what will be it in case of I, HX, HY, RAP, sigma PY. Always remember these two are different. RA is the genetic additive genetic IHX HY RA sigma PY. IHY
आई एच स्क्वायर सिग्मा पी, यही तो हमको लग रहा था कि क्या हो रहा है। बैक स्पेस आई कंट्रोल पर जेड, आई एच स्क्वायर सिग्मा पी, आई एच सिग्मा एच स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, ऐसे भी पता चल जाएगा, इंटू एच एक्स इंटू इंटू एच वाई इंटू आर ए पी इंटू सिग्मा पी वाई. When you divide them both denominator and numerator, intensity of selection for y in numerator and denominator will cancel out each other. One heritability in numerator and one heritability का root and heritability of का root cancel होगा, एक बचेगा, बराबर हो जाएगा hy sigma py will cancel out each other, hy upon hx into rap, where hx and hy are the square root of heritability in character x and y. Rap is the genetic correlation between character x and y, so it should be better denoted by xy. RAP तो accuracy of selection हो गया. It is the breeding value between correlation between the breeding value and phenotypic value. It is the correlation between genetic correlation between character x and y. Now is it clear to all of you? इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, इतना देखकर मत घबराइए. At your level, you all are the Robin Hoods of maths background. For the अगर रॉबिन हुड को मैथ्स को एडमिनिस्ट्रेशन मांगे, माने आप लोग को रॉबिन हुड माने तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू ऑल. परेशान मत होइए बेटा, मैथ्स देख देख कर इतना मत भागिए, ये थोड़ा सा जो है अगर बेस रहेगा आप लोग को आगे मदद करेगा. नाउ when to use indirect selection, you already know. When it is difficult and expensive, apply high selection intensity, enable है increased generation interval, or when it is slaughter rate. ये सब कहाँ जाएगा, ये सब भी तो यहीं आएगा, जिसको मेजर ही नहीं कर सकेंगे उसको. Now next is मल्टी ट्रेट सिलेक्शन. अभी तक जितना भी हमने सिलेक्ट किया, हमने क्या बोला था जब फैमिली सिलेक्शन भी बता रहे थे, तो से सपोज मिल्क प्रोडक्शन बोला, एक प्रोडक्शन बोला, और हमने क्या बोला कि सबका हर एक फैमिली का हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे. ट्रेट कितना लिया, सिर्फ एक लिया. देन हम लोगों ने जब बोला कंबाइंड सिलेक्शन, हमने ट्रेट क्या लिया, एक लिया. So all these are applicable when we have to select for just one trait. Although you know practically it is not feasible to concentrate on just single trait. Although you know that more lesser the number of traits, more good the selection, because more will be the genetic gain. भाई एक से दो तो हो ही सकता है, दो से तीन तो important cardinal traits या important trait हो ही सकते हैं in any animal for selection. We cannot just focus on milk production or egg production, because we know there are few other traits which are equally important. Am I clear to all of you? So such type of selection whereby we have to select for more than one trait at a time is called as multi-trait selection. Clear है सबको? So what are the methods of multi-trait selection? Multi-trait selection के तीन मेथड है. पहला tandem method, दूसरा independent culling method, and तीसरा selection index method. Let me give you all a small gist of the three methods involved. हमने बोला कि इट इज ऑल आर मेथड्स ऑफ मल्टी ट्रेड सिलेक्शन, मतलब एक से ज्यादा ट्रेड कंसिडर करना होगा. तो ये तीनों सिलेक्शन के मेथड्स जो हैं जस्ट इसी पे रिवॉल्व कर रहे हैं कि सारे ट्रेड को एक साथ सिलेक्ट कैसे करेंगे. अगर एक से ज्यादा ट्रेड है तो एक बारी बारी से सिलेक्ट करें, कि एक साथ सिलेक्ट करें, कि एक को सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करें, कि सबके लिए एक लेवल फिक्स कर दे. इनफैक्ट आई हैव गिवन यू ऑल अ लिस्ट ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स इन दिस सिंगल सेंटेंस. अब ये फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोग अग्री होइएगा मेरे साथ की जब जैसे जैसे समझते जाइएगा. All these three methods of multi-trait selection which I will be covering now, tandem method, independent culling method, selection index method, all these three methods just deal with an important concept, important principle
कि जो भाई ट्रेड तो एक से ज्यादा है तो अब सिलेक्ट सबको करना है, इंपॉर्टेंस ताकि सबको इक्वल मिले या जो जैसा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वैसा मिले। अब प्रॉब्लम ये सोचना है कि बारी बारी से सबको सिलेक्ट करें कि सबका एक लेवल फिक्स कर दें अलग अलग और उस हिसाब से सबको सिलेक्ट कर लें, आकि एक ऐसा इक्वेशन डिफाइन करे वेयर बाय वेटेज इज गिवन टू ईच ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच दैट दैट इक्वेशन जैसे कंबाइंड सिलेक्शन इंडेक्स था उसी तरह एक इंडेक्स बना के सबको कवर कर लें। This is the principle for the three trade selection types respectively. First one is tandem method. In this, one select trait is selected and then when you feel that sufficient improvement has been achieved, उसको छोड़ के फिर दूसरे ट्रेट में आते हैं, फिर दूसरा में हो गया तीसरे में आते हैं. This is called as tandem selection. एक के बाद एक. मतलब अगर हमें 3 ट्रेट में सिलेक्ट करना है, पहले हमें एक में ट्रेट में सिलेक्ट करना होगा, सफिशिएंट टाइम देना होगा. ध्यान से इसका थ्योरी सुनिए क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट मेरिट डिमेरिट सब इसी थ्योरी में छुपा हुआ है. मींस इफ सपोज you have to go for tandem selection, what you do, you select for one type of trait. Once you feel that sufficient satisfactory level of performance for that trait has been achieved, you relax or stop for that trait and direct your improvement towards second trait X2. And then you go on doing it for a number of generations. And then after a point of time when you feel that sufficient improvement has been achieved in X2, you stop it again, you go for X3 for number of generations and so on. Depending upon the number of traits you have to economic trait considered, X1, X2, X3 and so on. Now, tell me what are the few important points which will be considered in this. बताइए इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है. मेरिट ये है कि इट इज द इजीएस्ट मेथड टू बी फॉलोड बाय एनी फार्मर आल्सो एनीवन. बताइए व्हाट इज द डीमेरिट, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो बताइए. टेल मी. वेरी गुड. इट इज वेरी टाइम टेकिंग. पहला ठीक है, दूसरा बोलिए. हाँ बेटा ये अच्छा खराब वाला जो बात बोले ना, वो इनफैक्ट आई एम स्माइलिंग. वही चीज हमको चाहिए था, थोड़ा सा हटे ट्रैक से, बट आई एम हैप्पी कि वो बात तो आ गई. सो वेरी गुड. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. भाई यही यही तो सुनना था. अब आप ये बताइए कि अगर दो ट्रेट नेगेटिवली, बड़ा अच्छा है अगर कोई कोरिलेशन नहीं है, देन इट विल हैव नो प्रॉब्लम. बस एक ही प्रॉब्लम कि टाइम टेकन. चलो मान के चलते हैं पोल्ट्री है, जनरेशन इंटरवल कम है, सपोज आई टेक इट एज अ कांस्टेंट, ऑल्दो इट इज नॉट एन अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑफ टैंडम सिलेक्शन. इंक्रीज जनरेशन इंटरवल, इंक्रीज टाइम टेकन. Other than that, the next one which I am going to take up is the genetic correlation. If RG, this genetic correlation is 0, very good, doesn't matter. टाइम टेकिंग है बट एक के चलते दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा. पहले एक ट्रेड के लिए सिलेक्ट किए फिर दूसरे के लिए एंड सो ऑन. If it is positive or desirable, even more good. Selecting first one will automatically improve second. Selecting second one will improve more first one and then third one and so on. अगर first और second में genetic correlation है, मतलब it will not have detrimental effect on any of the important traits we are considering. But if suppose it is undesirable or negative, the more we improve one trait, the other trait will keep on reducing. So how will be able to हम लोग कभी भी select नहीं पूरा एक को achieve किए. X1 अगर X2 मान लीजिए नेगेटिव कोरिलेटेड है, X1 में सिलेक्ट किए X2 खराब होता गया, X2 में सिलेक्ट करना शुरू किए X1 खराब होता गया, और हम लोग सोच रहे हैं इतनी जनरेशन तक किया अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. वी आर सरप्राइज्ड कि व्हाई इज इट नॉट इम्प्रूविंग. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ऑफ genetic tandem method of selection. The next is independent culling method. ये था पहला method of selection, tandem method, one by one. Independent culling method मतलब as the name suggests we are culling all the traits independently. How? हमने बोला we fix one we have to remove what we do. हमने बोला कि दो भाई इसमें कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, एक कोरिलेशन वाला दूसरा टाइम वाला. what we do, हम क्या करते हैं, टाइम वाले को कम से कम रिमूव करने की कोशिश करते हैं. we fix a criteria for 3 traits. suppose we have to select for 3 traits. milk production, age at first calving and milk production, age at first calving and number of lactations. हमने ये 3 कंसीडर किए. And then we fix a level कि fine we are going to select the 10 best animals and we will select milk product for milk production only if, देखो हमने वैल्यू फिक्स किया, ध्यान से सुनो.
मिल्क प्रोडक्शन का हमने एवरेज वैल्यू फार्म का देखा, हमने स्थिति मॉनिटर की इस जगह की जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. सो एज अ ब्रीडर आफ्टर टेकिंग होल सर्वे और होल नोटिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स वी डिवाइस अ लिमिट. हमने बोला मिल्क प्रोडक्शन 1500 रखेंगे. ठीक है, ध्यान से सुनो. मिल्क प्रोडक्शन हम 1500 रखेंगे. एज एट फर्स्ट काविंग हम ठीक है एवरेज 3 साल रखेंगे. उससे ज्यादा मान के चलते हैं कि नहीं, इंडिजिनस में चाहे भी तो इम्प्रूव नहीं हो सकता है ना. और फार्म इस मैंने इस जो हमने फार्म का देखा, नंबर एनिमल देखा, सिचुएशन देखा, उस हिसाब से फिक्स किया. एंड थर्ड वन हमने नंबर ऑफ लैक्टेशंस जो है हमने बोला नहीं 6 से 7, 7 तक चलेगा, इस तरह करके कुछ हमने एक फिक्स कर दिया. और इन तीनों के बेसिस पे वी सिलेक्टेड 20 एनिमल्स. So we were able to select for all the trait at a time, unlike tandem method whereby we had to do it one by one. So first demerit was of course overcome, but the two new demerits started coming was that मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई एक एनिमल ऐसा है जिसका की जो milk production is the most important trait. But if suppose that animal had milk production of not 1500 but 1450, ध्यान से सुनिए, and age at first calving was very good, well beyond the given level, threshold level, then number of lactations was also very good, well beyond the threshold level, but we rejected the animal because its age at first calving was just few less than it. या फिर ऐसा हो कि मिल्क प्रोडक्शन उसकी 1500 क्या, उसकी 2000 या 2500 लीटर्स पर लैक्टेशन है, लेकिन एज एट फर्स्ट काविंग जो है वो 3 ना होकर के 3.5 या 3.2 इयर्स है. बाकी दूसरा वाला ट्रेड भी बहुत सही है, मतलब नंबर ऑफ लैक्टेशंस वेयर आल्सो मेनी. सो बिकॉज इट फेल्ड टू फुलफिल द लिमिट, वो जो लिमिट तीनों का हमने सेट कर दिया था, उस तीनों ट्रेड में से एक ट्रेड का बेचारा लिमिट थोड़ा सा के लिए मिस कर गया. इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड इन अदर टू ट्रेड्स, वी रिजेक्टेड इट. उस चक्कर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड उसका मिल्क प्रोडक्शन है उसी को हम कंसिडर नहीं कर पाए, एंड वी रिजेक्टेड अ गुड यील्डर. First, this is what is meant by no compensation for exclusive merit of one trait. Second, problem for fixing the culling levels and selection intensity. Yes, it is equally very important to fix the exact culling level. भाई select कितना करें, मान लीजिए हमको select करना है 30 और 40 एनिमल जो है वो लिमिट से बेटर है, या 30 सिलेक्ट करना है 20 ही जो है लिमिट से नीचे आए, बाकी कहाँ से हम उठाएंगे. पहला. दूसरा, how to fix the culling level to be optimum. This is also very important. And the third one, which is not mentioned here, as far as I can foresee, I just want a discussion with you all कि इसमें भी तो कोरिलेशन की समस्या नहीं चेंज हुई है. अगर दो ट्रेड नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो एक के लिए अच्छा सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली उसमें खराब आएगा, या एक ऐसा होगा कि एक में ज्यादा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो अगले में कम था, क्योंकि दो नेगेटिवली कोरिलेटेड है. दिस प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन स्टिल एग्जिस्ट्स. Am I clear to all of you up till here? Okay, okay. So looking at the merits and demerits of tandem method, independent culling method, the most accurate out of the three multi-trait selection method was devised, that was called as total score or selection index method. In this method, two or more traits of an individual are combined to obtain an index value by assigning weight to each trait. हर एक को एक index दे दिया, हर एक को एक weightage दे दी. वो वेटेज किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसकी एडिटिव यानी हेरिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि वो कितना ट्रांसमिट हो सकता है और कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, ये दोनों को कंबाइन करके हमने कुछ वेटेज दे दिया हर एक ट्रेड को. कहने का मतलब अगर हम लोगों ने n नंबर ऑफ ट्रेड सिलेक्ट किए हैं, वेटेज गिवन टू देम आर b1 b2 b3 अप टिल bn, वेटिंग वेइंग कोफिशिएंट्स असाइंड. ये हम लोग अभी इसको डिटेल में इन द नेक्स्ट क्लास, अपकमिंग क्लास विल डील विद द कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स एंड सायर इंडेक्स इन डिटेल. And x1, x2, x3 up till xn are the performance record for various traits obtained on the animal whose index value is to be calculated. Suppose we are talking about x1 being milk production, it will be the average milk yield of that animal number 1. Average क्या, animal 1 का तो normal milk yield. Average क्या होता है, जब एक का हुआ तो average क्या हुआ, और ये b1 क्या हो गया, b1 हो गया weighing coefficient attached to it. एंड देन सिमिलरली b2, मान लीजिए एज एट फर्स्ट काविंग, तो उस एनिमल के लिए i2 की क्या, x2 की क्या वैल्यू एज एट फर्स्ट काविंग के लिए, और हमने एज एट फर्स्ट काविंग को क्या वेटेज दिया है. तो कहने का मतलब, अगर हम लोग ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग 10 एनिमल्स में से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं टोटल स्कोर या सिलेक्शन इंडेक्स के मेथड पे, हमारे पास टोटल 10 इंडेक्स आएंगे, i1 i2 i3 i4 i5 i6 i10.
पहला चीज। दूसरा चीज, 10 एनिमल में B1 जो रहेगा वो सब में सेम रहेगा, B2 सबका सेम रहेगा, B3 सबका सेम रहेगा, B1 सबका सेम रहेगा। तीसरा चीज, X1 X2 X3 सब में अलग रहेगा, और हर एक एनिमल के लिए X1 डिफर करेगा, हर एक के लिए X2, यानी X1 जो होंगे 1 का अलग रहेगा, X2 X1 of first animal, X1 of second animal, X1 of third animal will differ for the 10 animals. X2 भी डिफर करेगा इंडिविजुअल एज एट फर्स्ट काविंग फॉर फर्स्ट एनिमल, सेकंड एनिमल, थर्ड एंड सो ऑन। तो सारे ट्रेट का जो अपना वैल्यू है X1 X2 वो अलग अलग होगा, लेकिन ये जो वेटेज दे रहे हैं वो तो हर एनिमल को इक्वली देंगे ना, क्योंकि वो तो हम लोग एनिमल को नहीं दे रहे बल्कि ट्रेट को दे रहे हैं। तो सपोज अगर हमें सिर्फ 3 ट्रेट के लिए सिलेक्ट करना है तो हमारा ये इक्वेशन घट के हो जाएगा B1 इंटू X1 प्लस B2 इंटू X2 प्लस B3 इंटू X3। डोंट गेट कंफ्यूज, ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट में है, B1 1 सुपर स्क्रिप्ट में, X में भी 1 सुपर स्क्रिप्ट में, और B1 और X1 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यू नो, ऑफ स्टार into कुछ नहीं, सारा रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। सो इट इज B1 इंटू X1 प्लस B2 इंटू X3 प्लस B3 इंटू X3 फॉर जस्ट 3 ट्रेड्स। फिर ये जो जोड़ के वैल्यू आएगा हम लोगों का, वो I1 से लेकर I10 तक जिसका ज्यादा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट रैंक्ड एनिमल होगा। और अगर हम लोगों को उतने एनिमल्स में से, उसी तरह अगर फार्म में 100 एनिमल्स हम, तो हम लोगों को 100 का इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हियर लाइज द डीमेरिट ऑफ टोटल इंडेक्स और सिलेक्शन इंडेक्स मेथड, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैथमेटिकली डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेटेड, बट इंपॉर्टेंट मेरिट इज दैट इट इज मोस्ट एक्यूरेट as it combines different trait in an optimum manner. Ideal method of selection by constraint तो इसमें भी है, because main problem lies in determining economic values। ये जो B1 B2 B3 हम लोग इसमें कोफिशिएंट अटैच करते हैं, उसमें इकोनॉमिक वैल्यू भी आता है, हेरिटेबिलिटी भी आती है। How to determine the exact economic value is difficult. Sometimes the selection index may select some poor animals, some animals that are very poor in one trait। एक ही ट्रेट हमारा इंपॉर्टेंट है और 10 तो ट्रेट डाल दिए, सिलेक्शन अच्छा होगा, उस चक्कर में जो एक ट्रेट है वैसी के साथ जस्टिस नहीं हो पाया। इसीलिए तो जितना कम ट्रेट उतना अच्छा। तो अगर ऐसा हो कि हमारे एनिमल में सिर्फ एक ही ट्रेट इंपॉर्टेंट हो, तो वी शुड गो अहेड फॉर दैट ओनली इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर ग्रीडी। ऑल्दो सिलेक्शन इंडेक्स इज द बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, ब्रीडर्स कैन यूज वन मेथड फॉर वन ट्रेट एंड अदर फॉर अदर ट्रेट इफ नीडेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक के लिए सिलेक्शन इंडेक्स यूज करिए, किसी के लिए टैंडम यूज करिए, किसी के लिए इंडिपेंडेंट, या कुछ ट्रेट के लिए कुछ यूज कीजिए, कुछ के लिए कुछ। अपकमिंग लेक्चर, कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स एंड सायर इंडेक्स, रेफरेंस बुक एनिमल ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस बाय गुरविंदर सिंह ब्रास। माय सैल्यूट एंड ग्रेटिट्यूड टू सर। बेटा अगर आप लोगों को टाइम मिले तो वो बुक मंगवाइए और पढ़िए, इट इज डैम गुड बुक। आई फेल्ट इट वाज लाइक अ ग्रंथ, and sir is actually retired, and the way he has written it मुझे समझ में आ रहा है कि उनको कितनी knowledge है। So if you all are really curious about the facts, have a good taste for books and want to read books and a passion of reading, do go for buying this book online. It is damn, I'm not promoting it beta, I have been following this book for years, although for the time, for the meantime, as far as we are concerned, we are giving you the full detail of the हर एक टॉपिक का हम लोग आप लोगों को डिटेल दे रहे हैं, मैक्सिमम इसी बुक से, बाकी इधर उधर से भी, बाहर से भी। So it is more than the notes are sufficient, but if you want to read, definitely it is needed for medical graduates, as I said to you all in the beginning. This book is damn good, बहुत अच्छा है। Now few questions taken up in, now if you all want to ask me questions, you all can, बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है चिल्ड्रन? तो नो मैम तो बोलिए। एम आई ऑडिबल? क्यों नहीं बोला मैम? थैंक यू छूटा हुआ है। चलो अब अटेंडेंस लेंगे, है ना? ठीक है।